السلام علیکم ناظرین رات سن 9 بجے تو قشر خبر نامہ ہیت بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل نیرویز کشمیر مولوی محمد عمر فاروق اعظم مرکزی جامع مسجد سرینگرس مز نماز جمعہ ادا کرنے برو لوک اجتماع خطاب کران ونمت آز متبرک ایام تو پریت اکس پزِ زیادہ کھت زیادہ عبادت کرت اللہ تعالیٰ سز خوشنودی حاصل کریں. بخارین کر روایت حضرت امام مسلمن کر روایت سند وات روک پانس پیٹا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ای العمل الافضل پرسن آل جناب حضرت سروری کائنات صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صحابیوں کو عرض صحابہ صبح آخاو تم کو عرض یا رسول اللہ ای العمل افضل کس حض عمل شے افضل ترین عمل بہترین عمل پسندید عمل خدایس فرمو وہ کیا ایمان باللہ ایمان خدایس پیٹ ایمان خدایس پیٹ ثم قال امپت فرمو وہ تمپت کس حض عمل چھ فرمو وہ قال الجہاد فی سبیل اللہ فرمو کہ خدای سندی ویتی جہاد کرو قیل ثم ماذا قال امپت فرمو امپت کسز عمل فرمو الحج المبرور الحج المبرور یعنی پاک حج صاف حج یت حجس مز خلوص آش یت حجس مز اللہ تعالیٰ سن محبت آش یت مز نہ مکر آش یت مز نہ دکھاو آش بلکہ صرف آش خدای سندس ات گرس وچنک شوق محبت توئی فرمو جناب رسول رحمت فرموک العمرۃ الى العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ کہ مسلمانوں ای بعض وار بوزیو فرماوا ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ کیا عمر بیس عمر استام منز واگ اگر کی لکٹ گناہ آسن اللہ تعالیٰ تمن درگزر کر مگر یہ حج ہی کر حج مبرور ہی کر فرماوا ٹوٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھن مزور مگر امی حج جنت چھن امی مزور مگر امی حج جنت. ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی سربراہ غلام نبی آزادن خارجہ سیکرٹری وکرم مشری ست ملاقات کرنے پتہ ذرائع ابلاغس ونمت غیر ملکی دورس پہ گھن والن وفدن ہز کوشش روز پاکستان اصلیت دنیا تام واتناون. خالی ہمارے نہیں سبھی گروپس کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کیا سچ ہے, کوئی جھوٹ تو بولنا نہیں ہے. اور کشمیر میں جموں کشمیر کے عوام تو ان کو 75 سال سے جھیل رہے ہیں, فزیکلی جھیل رہے ہیں. باقی ہمارے دوست تو سنتے ہیں دیکھتے آئے ہیں اور دیش نے بھی جھیلا ہے, لیکن جموں کشمیر تو ہر ہفتے جھیلتا رہتا. ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اسے اتنے دشکوں سے جو ٹیررزم جموں کشمیر میں اور دیش کے دوسرے حصوں میں پاکستان کے دوارا کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے ٹیررسٹ کو بچایا جاتا ہے, پناہ دیا جاتی ہے, ٹریننگ دی جاتی ہے, پیسہ لیا جاتا ہے, ان کو بھیجا جاتا ہے, تو یہ تو دنیا کو بھی معلوم ہونے چاہیے. نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھرین آز سرینگرس مز قائم صنعت گرس مز مختلف دفترن ہند اچانک دور کورمت یتھ دوران تمن ہمراہ انتظامیہ دویم افسر تہ موجود ٲسۍ. دورس دوران یت تمو محکمن ہند کامہ کارچ سام ہیژ تتہ تمو ذمہ دارن وونمت تم گژھن دفترن مز پرٛٮ۪تھ وِزِ حٲضر روزن یُتھ زن لوٗکن بٕتھن وٲلۍ مشکل دور کرنہٕ یِن. ییٚلہِ زن ذرائع ابلاغس سۭتۍ کتھ کران سریندر چودھرین ووٚن زِ سرکار طرفہٕ یِم وعدٕ لوٗکن سۭتۍ کرنہٕ چھِ آمٕتۍ تِمن وعدن عملی جامہ لاگنس حوالہٕ چھِ کوٗششہٕ جٲری یُتھ زن عام لوٗکن راحت واتہِ.
नहीं, फंक्शन कुछ नहीं है, ये मेरे डिपार्टमेंट से हैं और मैं इनका मिनिस्टर हूँ। सनतगर में आना कि जैसे मैं जम्मू में उद्योग भवन में गया था और अपने लोगों से मिला था, क्योंकि ऑफिसर मेरे से मिल सकते हैं बट ये छोटा मुलाजिम जो है इनके लिए मिलना मुश्किल है। तो थोड़ा सा इनको मिलना गिलना भी था और इनको सुनना भी था और साथ साथ में इनको बताना भी चाहता था कि भाई उमर अब्दुल्ला सरकार क्या चाहती है, क्योंकि लोगों ने हमें एक मैंडेट दिया है और मैंडेट यही है कि इन पिछले 10 साल में लोगों की जो सुनवाई नहीं हुई उसको हमने सुनना है। और मैंने वही बात ऑफिसरान को भी कही और लोगों से भी, अपने जो यहाँ लोग ऑफिसर्स हैं, मैंने उनसे भी बात की और छोटे मुलाजमों से भी बात की और मैंने एक ही बात कही कि हम सब ने मिलजुल कर जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाना है, हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है। ये तभी होगा जब हम अपनी अपनी जिम्मेवारी समझेंगे। और जब मैं यहाँ इस ऑफिस में आया हूँ, थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं, इन लोगों की अपनी डिमांड्स भी हैं, कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत भी है और कुछ थोड़ा सा ये भी है कि कुछ ऑफिसरान ये हैं वो इस वहम में हैं कि शायद क्योंकि यहाँ कल्चर ख़त्म हो गया था, कश्मीर वाले ऑफिसर जम्मू नहीं जाना, जम्मू वाले इधर नहीं आना, वो कल्चर मैंने थोड़ा सा यहाँ ऑब्जर्व किया है और मैंने डायरेक्शन दे दी है। मैं वापस जाके सेक्रेटरीट में मैं उन ऑफिसर्स को भी हिदायत दूंगा जो जम्मू में बैठे हैं, पूरा छोटा मुलाजिम ना आए बट जो ऑफिसर्स हैं, जो बड़े ऑफिसर हैं, जो स्टेट के ऑफिसर हैं, उनको यहाँ आना चाहिए, यहाँ लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें और मुसीबतें जम्मू कश्मीर के लोगों की साझी हैं और बराबर की हैं। और ये फर्क होता है, कहीं ज़्यादा होंगी कहीं कम होंगी, बट उमर अब्दुल्ला सरकार का एक ही मकसद है कि जिस मकसद के लिए हमें चुना गया है और जिस मकसद के लिए हमें जम्मू कश्मीर की रहनुमाई दी गई है, उस मकसद पे हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारे सामने पहलगाम हो गया, उसके बाद बॉर्डरों पे एक जंग लग गई जिससे जम्मू कश्मीर को नुकसान हुआ और ख़ासकर कश्मीर को नुकसान हुआ, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा था इस बार और एयरपोर्ट के ऊपर ऐसे लगता नहीं था कि हम एयरपोर्ट पे, ऐसे लगता था कि हम किसी बस स्टैंड के भी ऊपर खड़े हैं, इतना टूरिस्ट था। और ये आई टूरिस्ट थोड़ा कम हो गया, काफ़ी कम हो गया, हमारे लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, चाहे वो टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं या किसी जो शोबे से जिन लोगों को टूरिस्ट के साथ जुड़े हैं उनको लोगों को नुकसान हुआ है। और ये बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की और ख़ासकर कश्मीर की कि पहलगाम यहाँ हुआ और यहाँ पे जो जंग हुई और काफ़ी सारे लोग भी हमारे उसमें शहीद हुए। आप पुंछ आपके सामने हैं, कितने लोग हमारे बेचारे वहाँ मारे गए इस जंग में, उड़ी कितना तबाह हो गया, कितने इलाकों में फायरिंग से लोगों के मकान टूटे और नुकसान जम्मू कश्मीर में हुआ है। आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एसोसिएशन तरफ आज अनंतनाग मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल हेल्पर तो वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल हेल्परों तो वर्करों तरफ वन आमुत यदि तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान, ताहम तिहद तनख्वाह वक्तस पे वागुजार करने यमकिन तम एहतजाज करनस पे मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल वर्करों तो हेल्परों तरफ सरकार मांग करना आमुत तिहद मसल अंजराम सवाल गन कदम तुलने युद्ध जन तिमन बुथिन वो मुश्किल दूर करने। मुदावर मकसद है जो हमारे 5 दिनों से पेंडिंग है, हमारा वो हमें वागुजार किया जाए और जो हमारी बहनें हैं जो रेंट पे उन्होंने अपना मकान दिया है उनकी जो रेंट है वो मिलना चाहिए और फिलहाल चाल जो इनकी है वो मिलना चाहिए, जो हम इंसेंटिव लेते हैं वो हमें मिलना चाहिए। और हम गवर्नर हुकूमत से अपील करना चाहते हैं कि जो हमारा आरिम 5 दिनों से पेंडिंग है वो हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए और जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया है 2024 में, जो हमारे साथ उसने वादा किया कि आप लोगों को तनख्वाह बढ़ाएंगे और 4 मंथ आपको आरिम मिलेगा, लेकिन वो वादे खोखले हैं, वो वादे झूठ है। हम वो उस वादों का हम आज पर्दा उठाने के लिए यहाँ सड़कों पे आए हैं, क्योंकि हमारे जो बाल बच्चे हैं उनको वो फाका कशी कर रहे हैं, वो स्कूल में उनको भगाया जाते हैं क्योंकि उनको टाइम पे फीस नहीं मिल रहा है। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं क्योंकि जो हमारी जो बिलें हैं वो ट्रेजरी में पड़े हुए हैं, हम उससे अपील करना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारा आरियम वागुजार किया जाए और हमारा आरियम बढ़ाया जाए। बनगाम चौक शुपिनस मज आज लूकों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहतजाज में शामिल लूक PHE महकमस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवे इलाकस में साफ चनाब व्यथ हवाले कई फिर हुकामन जान दिन
ताहम कह कदम तुलने आमुत यम किन लूक एहजाज करनस पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराम करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने yin युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने yin। अगर यम ठीक मिलान आब खसान अगर प्रशास जरूर आब कतर योर कुन गम रत तावत आब कतर यप गो वो बिल्कुल तो सुबह शाम खसान यप टोटली खसान आज गई 15 दह आज बड़ दह आज जुमा महमद त्रान करो कुरान पे अगर तक चुंबे साहब इन बचन जरूर अगर तक चुंबे साहब आब आब जरूरत कथे गरम क्या नलकन क्या आब ये असल पे आज क्या गो गई आब सारी जिंदगी आबस पे पावर ये कुछ साथ यह क्या बत बन मगर आब ये बन सोरे आबस पे सारी जिंदगी चाहे सो क्यों क्रूल आब गो सारी जिंदगी तथ पे। लोगों ने यहाँ गाड़ी से उतारा और यहाँ रोड ब्लॉक किया है और हमने पूछा कि यहाँ पानी के लिए ये तरस रहे हैं, पिछले 10 दिन से इनको पानी नहीं है, जबकि ऑनरेबल एमएलए साहब को भी कहा है मगर कार्रवाई नहीं हुई है। पीएचई डिपार्टमेंट के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इन आयाम में वो लोगों को पीने का पानी दिलाने में बिल्कुल फेलियर है और ऑनरेबल एमएलए भी इसमें मतलब जो इसके घर के सामने है, ये ऐसी हालत है, इसको इंटरवेन कर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी एक कंटेस्टेड कैंडिडेट रहा हूं। एमपी इलेक्शन मैंने यहां से लड़ा है और बदकिस्मती की बात है, इत्तेफाकन मैं आज नमाज के लिए जा रहा था और यहाँ माँ बहने हमारे निकले प्रोटेस्ट करने के लिए, इन्होंने रोक के रखा है, तो मैं इनके साथ थोड़ी जबरदस्ती करूंगी। जेन्युइन डिमांड है, ये सरकार से अपना इंसाफ मांगते हैं। आज गर्मी की महामारी है, गर्मी की महामारी की होने की वजह से आज इनके घरों में पानी नहीं है। आज अजीम दिन है, सुनने में आया कि इनको वहाँ वजू के लिए पानी भी नहीं है। यार यही तो मुद्दे उठाने सरकार को। देखिए, सरकार ने जो दावे किए हैं, सरकार ने असेंबली में भी दावे किए हैं, लेकिन आज ये सरकार कहाँ पे है? वो एमएलए साहिबान जितने भी है, चाहे कहा कोई भी एमएलए हो, अपने अपने एरिया में घूमते हैं, अपने अपने एरिया के मसले उठाते हैं। लेकिन आज बदकिस्मती की बात है, आज के डेट में भी जहां सरकार दावे करती है और आज की डेट में भी इनको पानी नहीं मिल रहा है। बडगमिस में आज महकमा एग्रीकल्चर तरफ प्रोग्राम सांस करना आमत यथ मज जिला तरक्याती कमिश्नर बडगमिस अलाव महकम के जिम्मेदार तो मुलजमो शिरकत कर। अत मौके पे ये जिला तरक्याती कमिश्नरन जदीद टेक्नोलॉजी से लेस माल बरदार गाड़ वादी नबर रवाना कर। तत जिम्मेदार तरफ वन आमद एग्रीकल्चर सेक्टरस मजीद वसत दिनस तो अत सबिस्त जमींदारन ज्यादा खुद ज्यादा फायदे वातनावनस हवाले यन प्रोग्रामन हुंद सांस करने युद्ध जन जमींदार खुद कफील बनावनस मज आसानी सपदे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असरार अहमद मलिक, चेयरमैन BF मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव लिमिटेड बड़गाम। मैं पिछले 3 सालों से इस एसोसिएशन के साथ हूँ, मैं इसका चेयरमैन हूँ। मैं बड़गाम जितने किसान लोग हमारे हैं उनकी हेल्प करता हूँ, उनसे सारा माल मैं कलेक्ट करता हूँ। अभी हमने जो रिसेंटली गाड़ी भरी है बड़गाम से, तो वो तकरीबन 100 क्विंटल के करीब हमने ग्रीन पीस भरा है इसमें। कल वो हमने जमा किया था, तकरीबन 50 किसान का ये ग्रीन पीस था। तो इनको हमने अच्छी रेट्स भी दी थी, तकरीबन 50 रुपए के हिसाब से हमने उनको पैसे दिए हैं, 40 और 50 के हिसाब से, ग्रेडिंग के हिसाब से अच्छे पैसे उनको दिए हैं। जबकि इधर जो कश्मीर में ये बेचते थे इनको 25-30 रुपए 15 रुपए मिलता था, मगर हमने इनको नकद पैसे दिए और घर से भी हमने इनको कैरेज किया और इनको हमने अच्छा पैसा दिया। तो ये माल जो हमने अभी बेंगलोर के लिए जा रहा है, आउट ऑफ स्टेट जा रहा है। और हमारा जो अभी और भी हम माल बाहर कर रहे हैं, जैसे कतर है, तकरीबन हर
आउट ऑफ कंट्री, और हर 50 मंडियों में तकरीबन इंडिया के हमारा माल जा रहा है। ग्रीन पीस अभी हम गार्लिक ले रहे हैं लोगों के, किसानों के साथ, और उनको अच्छी रेट दे रहे हैं और नकद पैसे दे रहे हैं। इसमें जो हमारी मदद जो की है वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साहब नसीर अहमद खान नए आए हैं इधर, बहुत ही जबरदस्त अफसर है, हेल्पफुल है। इसने हमारी मदद की है। इसने हमारी रेफ्रिजरेटर जो गाड़ी दी है उसमें हमें टोल और खाली तेल देना है। तो तकरीबन जो आज हमने जो रेफ्रिजरेटर वैन भेजी, ये आज हरियाणा जा रही है चंडीगढ़। इसमें 100 क्विंटल जा रहा है अभी आज हमारा। इसमें मटर है, पीस। इस समय पूरे इंडिया में पीस का सीजन कहीं पर नहीं है। हम ये पीस एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज यहाँ से। ये सिर्फ चंडीगढ़ ही नहीं जा रहा है, ये हरियाणा ही नहीं जा रहा है। आज तक हमने जो डाटा यहाँ पर भेजी, मैं आपके साथ थोड़ा डाटा शेयर कर रहा हूँ। जो हमारा ये टोटल वेजिटेबल एरिया है बड़गाम का, वो है 5897 हेक्टेयर्स। जब हम इसमें 3 क्रॉप्स लगाते हैं तो ये मल्टीपल होता है। हम 3 क्रॉप्स यहाँ बड़गाम में लगाते हैं। बड़गाम एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 3 क्रॉप्स बराबर होते हैं, खरीफ में भी, रबी में भी, ज़ैद में भी। तो जो प्रोडक्शन हमारी है आज तक की, वो है टोटल प्रोडक्शन जो कन्वेंशनल एंड ऑर्गेनिक, बोथ कन्वेंशनल एंड ऑर्गेनिक, ये है हमारी 4761 मेट्रिक टन्स। इसमें से हमारी अपनी कंजप्शन है, जैसे कि हम जो ये डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूम करते हैं, यहाँ के फार्मर्स यहाँ जो ये खुद कमाते हैं, उसमें कंजप्शन हमारी जो है, टोटल कंजप्शन हमारी है 84.21 मेट्रिक टन्स। जो हम सरप्लस है, जो हम बाहर स्टेटों को भेजते हैं या बाहर डिस्ट्रिक्ट को भेजते हैं, आउट ऑफ स्टेट भेज रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री भेज रहे हैं, या लोकल यहाँ की लोकल मंडीज में जा रही है, लोकल कोई फार्मर या दुकानदार वेंडर कोई खुद खरीदा, वो उसकी जो हमारे पास बड़गाम में सरप्लस जो है 4676.97 मेट्रिक टन है। इसमें आउट ऑफ कंट्री जो हमने भेजा, आउट ऑफ कंट्री आज तक हमने डिफरेंट, इसमें पीस ही नहीं जा रहे, इसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स जा रहे हैं। कॉलीफ्लावर जा रहा है, कैबेज जा रहा है, कैरेट जा रहा है, भेज रहे हैं, मस्कट भेज रहे हैं 2 जगहों पर। खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूं तफसील। खानका त्रालिक लूकियत पत्म कई काल पे सड़कें शहर पर करने सरकार मंग करान तच प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तरफ सड़कें शहर पर करने हवाले काम शुरू करना आमज, यथ दौरान सड़क पर तारकोल वहरान काम जारी है। यह मुकामी लूकों तरफ खुशी इंतजार करान वन आव जो सड़कें खस्ताली सहित आम लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान, ताहम वात सड़कें शहर पर करने सहित कईयान इलाकन मज रोजन वाले लूकन सठोई राहत। तो ये सर, ये जो रोड की प्रॉब्लम थी ये काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ी थी। तो अब पूरी कोशिश की है इन्होंने, हमारा जो रोड है ये अच्छी तरह से पूरा मैग्नेमाइज हो गया है। तो पहले यहाँ हमें चलने में बड़ी दिक्कत होती थी, हम यहाँ चल नहीं पाते थे, धूल उड़ती थी, गर्दा उड़ता था, बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन जो पिछले साल से जो रोड की वाइडनिंग हो गई, मैग्नेमाइज आज हो गया है, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। रोड जो है वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। फ्राम खानका टू बटगुंड तक जो रोड है वो पूरा ठीक तरह हो गया। अब हमें कोई परेशानी नहीं है, हम चल फिर सकते हैं, कोई धूल मिट्टी नहीं है, कोई गर्दा नहीं है, और कहीं कहीं पानी भी जमा नहीं होता है। हाँ सर, हमारी और भी बहुत सारे काम जो पेंडिंग है। हमारे त्राला का जो है हमारा जो काफ़ी रोड वहाँ से लिंक है, उनका भी काम अभी नहीं हुआ है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि उनका काम भी जल्द से शुरू किया जाए, ताकि वहाँ के लोग भी आराम से रह सकें, उनके बच्चे भी स्कूल इसी तरह जा सके और वो भी अपनी जो ज़िंदगी है वो खुशहाल तरीके से व्यतीत कर सके। ये सड़क बहुत ख़राब थी, इसमें बहुत खड्डे थे, गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, बच्चों को मुश्किल हो रहा था स्कूल जाने के लिए, बर्फ़ में बहुत मुश्किल हो रहा था, बारिश में बहुत मुश्किल हो रहा था। अब बहुत अच्छा काम किया PMGSY ने, अच्छा काम किया। हम इलाके के बाकी पूरे त्राल इलाके के लिए कहते हैं कि इसको भी ठीक किया जाए, सारी सड़कों को ठीक किया जाए करते थे अपील। और क्या, हम बार बार सरकार को अपील करते थे। अब PMGSY ने थोड़ा सा काम किया, अच्छा किया, बहुत अच्छा काम हुआ। अब मांग करते हैं PMGSY से कि पूरे इलाके में सड़कें ठीक की जाएँ, पूरे इलाके को देखा जाए। और हम शुक्रगुजार हैं PMGSY के जिन्होंने ये काम किया। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। नेशनल लाइवलीहुड मिशन तो म्यूनसिपल कमेटी शुपियन तरफ आज पिंजूरा शुपियन मज माहौलियत हवाले वुमेन फॉर ट्रीज प्रोग्राम सांस करना आमुत, यथ मज जिम्मेदारों अलाव जन हिंद बड़ तादादन शिरकत कर। अत मौके पे ये माहौलियात हवाले कथन दल दिन आव, तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत माहौलियती तवजुन बरकरार थाने बापत ये कुल लागन जरूरी, तत जरूरी लूकन ये अमे हवाले मुकम्मल जान दिन युत जन अत मज
आसानी सपदे। देखिए, मिनिस्ट्री में जो लोग होते हैं, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, दे नो द सिचुएशन की कहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है। अर्बन एरियाज़ में चूँकि कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, कमर्शियल एरियाज़ वगैरह है, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन या ये जो है पेड़ वेड़ बहुत काटे गए। तो इस हवाले से मिनिस्ट्री ने इनिशिएटिव लिया कि हम ग्रीन जोन्स जो है क्रिएट करें। जो साइट्स आइडेंटिफाई करी मिनिस्ट्री ने, वो पर्टिकुलरली हमारी जो वाटर बॉडीज बनी है सारे टाउन्स में या हमारा जो भी श्रीनगर या जम्मू का म्यूनसिपल एरिया है वहाँ पे बनी है। तो उन जगहों को मिनिस्ट्री ने इसके लिए सिलेक्ट किया है। आपकी तरफ से उन लोगों को क्या मैसेज है जो वाटर बॉडीज को पोल्यूट करते हैं, गंदगी डालते हैं, इसकी वजह से आम लोगों को फिर ये सजा भुगतनी पड़ती है? देखिए, मैसेज जनरल ही ये है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेप्स ले रहा है। गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स। हम डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, हम सेग्रीगेशन की तरफ जा रहे हैं, हम रोड स्वीपिंग कर रहे हैं, या बाकी जो भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी थी वो हम फुलफिल कर रहे हैं। अब लोगों पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना पार्ट प्ले करे। गाड़ी की टाइमिंग जो है उसे नोट करना है कि गाड़ी कब आती है, हम उसमें कूड़ा डालें, ठीक है। जो अपनी सराउंडिंग्स है उनका खुद केयर टेक करना है। लोगों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अपने आप में लाना है। हमारी ऑनगोइंग कैंपेन अभी चल रही है वुमेन फॉर ट्रीज, उसी को आगे ले जाते हुए हमने यहाँ पे साइट विजिट किया इन कोलैबोरेशन विद म्युनिसिपल काउंसिल शोपियान, जहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हमारे साथ आए हुए हैं। असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट मेरी हमरा है। तो इस का मेन मोटिव ये था कि हम यहाँ पे साइट आइडेंटिफाई करें जहाँ पे हम आगे 5 जून से प्लांटेशन ड्राइव कर सकें। तो इसमें जो इस स्कीम को चलाएंगे वो हमारी बहनें हैं जो एनवेलम के SHG में हमारे साथ जुड़ी हुई है। उन्हीं के थ्रू ये सारा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाएगा और आगे 2 साल के लिए वो इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेंगे। इसमें प्रॉपर फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई। जो यहाँ पर आज ये प्रोग्राम हुआ था, तो ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये पूरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ की सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आसपास को क्लीन रखे। क्योंकि और जो हमारा आज का ये प्रोग्राम था वुमेन फॉर ट्रीज, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव था और हमें यहाँ पर शोपियान डिस्ट्रिक्ट को ग्रीन जोन बनाना चाहिए। सिर्फ शोपियान डिस्ट्रिक्ट को नहीं, पूरे कश्मीर को, क्योंकि जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो रही है और या फॉरेस्ट फायर भी हम देख रहे हैं, वेदर में चेंजेस भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन भी हो रहा है। तो हम अवेयरनेस दे रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाज़त, खुदा सवाल।